जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चैलेंज करने वाली बैच ऑफ पिटीशंस की सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा का बेंच ने 31 अक्टूबर को पिटिशनर्स के आर्गुमेंट्स को कंसीडर किया था। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट शादान फरासत ने अपने अपने सबमिशंस बेंच के सामने रखे थे, जो कि हम आपको अपनी डे 1 की वीडियो में बता चुके हैं। 1 नवंबर को जब डे 2 की हियरिंग की शुरुआत हुई तो पेंडिंग पिटिशनर्स ने अपने आर्गुमेंट्स पेश किए। साथ ही बेंच ने पिटिशनर्स को सभी सबमिशंस को सेम डे पर कंक्लूड करने को भी कहते हुए सुना। ऑनगोइंग हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच ने इलेक्शन कमीशन को अपने दायरे में लिया है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इलेक्शन कमीशन को लपेटे में लेते हुए क्या कहा और क्या बात हुई कि बेंच को ऐसा करना पड़ा, लेट्स टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। दरअसल NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने बेंच से कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, डिसरिगार्डिंग द वार्निंग्स फ्रॉम बोथ द इलेक्शन कमीशन एंड द RBI अबाउट देयर deleterious impact on transparency of funding to political parties, democracy and economy. To be exact, he said, electoral bonds have legalized unlimited anonymous donations by allowing foreign entities, large-scale entities, unknown hidden entities and Benam companies to funnel unaccounted black money through shell companies. With the emergence of electoral bonds, illegal money has been enabled to enter quite conveniently into the electoral process. Large-scale corruption, that is, crony capitalism, is being enabled because of the quid pro quo relationship between the government in power and the corporate giants. साथ ही उन्होंने ऐड किया था कि 6 सालों में 31 पार्टीज ने ₹16,438 करोड़ एज डोनेशन रिसीव किए हैं। He stated, ₹9,188 crore was received from electoral bonds, that is 55.9% of which ₹4,615 crore was from the corporate sector, that is 28.1%, and ₹2,635 crore from other resources, that is 16%. और बताया कि 2018 और 2022 के बीच ये पोल बॉन्ड्स के द्वारा ये डोनेशंस 7.5 टाइम्स तक राइज हुई हैं। बीजेपी को 74.7% of all electoral bonds purchased in the country amounting to ₹5,272 करोड़ तक रिसीव हुआ है। भूषण का ये आर्ग्यूमेंट था कि जब सिटीजन को पार्टीज के फंडिंग सोर्स के बारे में नहीं पता होता है तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। भूषण even argued electoral bonds are encouraging corruption, quid pro quo tendencies among corporates and skewing the level playing field in election. 1 नवंबर की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इलेक्शन कमीशन को रेडी रहने के लिए बोला है with the details of electoral bond fundings of political parties as per the Supreme Court's interim order of April 12, 2019. आपको बता दूं कि 2019 के ऑर्डर में ये कहा था that the just and proper interim directions would be to require all the political parties who have received donations through electoral bonds to submit to the Election Commission of India in sealed cover details, particulars to the donor as against each bond, the amount of each such bond, and the full particulars of the credit received against each bond, namely the particulars of the bank account to which the amount has been credited and the date of each such credit. सुप्रीम कोर्ट के ऐसा कहने पर इलेक्शन कमीशन के काउंसिल अमित शर्मा ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ 2019 की ही डिटेल सबमिट की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के इंटरिम ऑर्डर में अप टू 12 अप्रैल 2019 तक ही डिटेल्स के डिस्क्लोजर की मांग की थी। पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस बात से डिसएग्री किया और कहा कि इंटरिम ऑर्डर एक कंटिन्यूअस मैंडेमस था और इंटरिम ऑर्डर में सब्सिक्वेंट पैराग्राफ वाज फॉर द इलेक्टोरल बॉन्ड्स that were issued till 12 April 2019. The judges asked, why only till 2019? This was a continuing mandamus. It was an interim order and it had to be continued till the final order. You were supposed to keep such data till date. Chief Justice of India led bench ने शर्मा से कहा, You, Election Commission must have details of the donation made to the political parties through electoral bonds as per the interim order. Do keep it with you in court. We may look into it at an appropriate time. जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट ने ये स्कीम
जनवरी 2018 में इंट्रोड्यूस की थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक मनी इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट कंपनीज बाय कर सकते हैं थ्रू SBI और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है, जो कि फ्री है उसे रिडीम करने में। ये पूरा प्रोसेस एनोनिमस है क्योंकि किसी को भी इन इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड्स के परचेज को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है और साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज को ये दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि उनका सोर्स ऑफ मनी क्या है। ऐसे ही कई इश्यूज को चैलेंज करते हुए पिटिशनर्स ने ये केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, जिसकी हियरिंग करंटली 5 जज बेंच सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये अनाउंसमेंट कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन डिटेल्स को एग्जामिन करेगा जो उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आई है, उन पार्टीज के लिए ट्रबल कॉज कर सकता है जिसे इस स्कीम के अंडर फायदा हुआ है, एज देयर आर कंसर्न्स ऑफ अ क्विड प्रो क्वा रिलेशनशिप बिटवीन द डोनर्स एंड द फेवर्ड रेजिम्स। Day 2 की प्रोसीडिंग्स में क्या क्या हुआ, इसके बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून विद द लॉ चक्रा।